کیا کہانی ہے مومانی کے ساتھ نجائز مراسم کتنے عرصے سے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 19 رمضان المبارک کی بات ہے. تقریباً سحری کے ٹائم پہ 15 پہ کال چلی کہ نسیم شاہ جو سابقہ جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں کیسر باس اس کے ماموں ہیں، ان کو بذریعہ فائر مضروب کر دیا گیا. ٹھیک ہے. موقع پہ جاتے ہیں تو جا کے کنڈیشن دے کے ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل ریسکیو کرتے ہیں. ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹل سے ان کو لاہور ریفر کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نسیم شاہ ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے سحری کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے جب مسجد کے لیے جانے لگے تو جب انہوں نے گھر کے دروازے کو لاک کیا تو پیچھے سے کسی نامعلوم نے 2 فائر کیے کمر پہ، ٹھیک، جس سے وہ مضروب ہو کے زمین پہ گر پڑے اور آفٹر 24 آورز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک معاملہ تھا، مسئلہ تھا، اب پتہ نہیں تھا کون قتل کر گیا. وہاں پہ CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، لیکن جو قاتل تھا وہ اتنا شاطر تھا، گھر کا اپنا نمائندہ تھا، گھر میں رہنے والا تھا، بیدی بھی تھا. اس نے کیا کیا کہ فوری طور پہ آ کے اس CCTV فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا. تو ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین ہوتی ہے، پھر ہم جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے ہیومن سورسز سے، کیونکہ گاؤں کے اندر تھا، تو ہیومن سورسز سے میں نے پتہ کیا تو وہاں مجھے کچھ چیزیں ملیں. تقریباً میں نے وہاں پہ 6 گھنٹے گزارے اس لوکیلٹی کے اندر. تو مجھے کچھ لوگوں نے کافی چیزیں بتائی، انفارمیشن میں نے کلیکٹ کی، مختلف لوگوں سے ملا، مختلف لوگوں کو میں نے یہاں تھانے بلا کے انفارمیشن کلیکٹ کی. تو مجھے کچھ چیزیں ملیں تو جو ان کے مطلب ان کے گھر کے اندر کو الیسٹ ریلیشنز کے ریلیونٹ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے نا، ناجائز مراسم مجھے زیادہ لگے. تو ہم نے وہ مقتول کا میں نے نمبر لیا، مقتول کی میں نے CDR نکلوائی، اس کی مسز کی میں نے CDR نکلوائی، ٹھیک ہے، اس کے بچوں کی میں نے CDR نکلوائی. ہم نے ٹیکنیکلی کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جب ٹیکنیکل کام کرتے کرتے ہمیں کو 3-4 دن کے اندر مختلف کلیوز ملے. جو محترمہ تھیں، مقتول کی جو بیوہ تھیں، ان کا ایک نمبر پہ بہت زیادہ رابطے تھے. ٹھیک ہے. مور دین 4000 کالز تھیں، میسیجز تھے. پھر وہ مرڈر کے بعد نمبر بند ہو جاتا ہے، پھر کسی اور نمبر سے رابطہ ہو جاتا ہے، پھر کسی اور نمبر سے رابطہ ہوتا ہے، پھر کسی اور نمبر سے، یعنی آفٹر مرڈر وہ 3 سمیں اور استعمال کرتا ہے. شک جو ہے وہ وہیں مضبوط ہو جاتا ہے کہ مرڈر کے بعد نمبر بند کیوں ہوا. بالکل، وہ ہمارا جو وہ ہمیں کلیئر ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ کہانی یہیں پہ ارد گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس نمبر کی CDR لی، اس کی آنرشپ لی، تو وہ پتہ چلا کہ وہ شان اور افشانی مقتول کا حقیقی بھانجا ہے، بہن کا بیٹا. تو بہن کا بیٹا وہ ہے جس کو اسی ماموں نے چھوٹی عمر میں اپنے گھر میں رکھا، اس کو پالا، اس کو جوان کیا، ٹھیک ہے، اس کو MA تک تعلیم دلوائی. ٹھیک ہے جی. تو بڑی دردناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، کیا کہتے ہیں، انبلیویبل سی بات ہے، ناقابل یقین بات ہے. کیسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سٹوری اور تھی، ناجائز تعلقات تھے، ایشوز اور تھے. تو پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہونا تھا جو اس نے وہ کیا. مقصد کیا تھا ماموں کو قتل کرنے کے بعد؟ کیوں شادی وادی کا پلان تھا؟ دیکھیں، خاتون کو جب ہم نے شامل تفتیش کیا تو خاتون نے بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سٹوری بتائی. جی ٹھیک ہے. اس نے کہا جی بالکل میرے شوہر کے ساتھ میرے اچھے تعلقات نہیں تھے، وہ میرے ساتھ اچھا کوآپریٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. اوکے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، تھوڑے عرصے کے بعد اس کا میری طرف رجحان ہو گیا، میری طرف زیادہ خیال کرنے لگا. تو میرے اس کے ساتھ مراسم شروع ہو گئے، جو تقریباً پچھلے مرڈر سے تقریباً 6-7 سال پہلے سے ان کے ریلیشن استوار آپس میں ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. جو غائب گئے آپس میں ملتے تھے. نہیں، ان ریلیشنز کو ہم کیا کہیں گے، کتنے سال کے تھے؟ تقریباً 6-7 سال. 6-7 سال. ٹھیک ہے. ملزم کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال. نہیں، 6-7 سال سے. جو اس خاتون کے بیان کے مطابق اس کے انٹرویو میں وہ 6-7 سال سے ان کے تعلقات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب اس کے ماموں کو پتا ہوا تو اس کے ماموں نے اس کو گھر سے نکال دیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہیں پہ اسی گھر کے پیچھے محلے میں ایک مکان لے کر کرائے پہ رہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ وقفے سے اس ریلیشن کو آگے چلاتا رہا، وقفے سے آتا رہا، وقفے سارے کام کرتا رہا. جب ان کے ریلیشنز پیک پہ پہنچے، جب ان سے اب وہ کہتے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے پلان کیا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ہوا کیا کہ محترمہ کہتی ہیں، وہ جو خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کو کہیں
लोकेलिटी से बाहर कत्ल करो, इसको इलाके से बाहर कत्ल करो। ठीक है, लेकिन ये जज्बात में आ गया तो इसने आके इसको वहीं पे कत्ल कर। ठीक है। कत्ल करने के बाद कितनी देर तक ये बातचीत इनकी आपस में होती रही? जी, कत्ल करने के बाद मुसलसल ही आपस में राब्ते में रहे। ठीक है। ये अपने मामू के कातलों को ढूंढता भी रहा, अच्छा, सर्च भी करता रहा, और कफन दफन में भी साथ रहा, कफन दफन में शामिल था। तो जब हम इसको सीडीआर की हेल्प से पकड़ लिए, इसको इंटेरोगेट किया, तो फिर ये सारी बात इसने खोल दी। कितने दिन लगे मुलजिम को गिरफ्तार करने में? तकरीबन 12 से 15 दिन लगे। 12 से 15 दिन लगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कि ये लड़का जिसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, हम ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं जानता, ये सब जानता है। और ये इन सब के बाद इसने उसी मामू को कत्ल किया है जिसने पाला पोसा और बड़ा किया। माशरे के इस रवैये को किस नज़र से देखती हैं? ये आपका इंसाफ का सिस्टम भी है जो कि कमज़ोर है, और जिसने लोगों को इतनी जुर्रत दी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, और लोगों को पता है कि अगर वो जुर्म करेंगे भी दे कैन गो स्कॉट फ्री। सो फिर ये आपका वो कमज़ोर निज़ाम इंसाफ भी है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हर गलत काम का जो सेहरा है वो ख़वातीन के सर पे लगाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 150 साला 150 साला तारीख में पहली खातून सेक्रेटरी मुंतखब हुई सबाहत रिजवी साहिबा। आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम इनसे केस के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ में एक खातून का किरदार क्या होना चाहिए इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं सबाहत रिजवी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस के 150 साल की तारीख में पहली खातून सेक्रेटरी आप मुंतखब हुई हैं, और बड़े फ़ख्र की बात है कि एक खातून ने वो कुर्सी संभाली है जो हमेशा से मर्द संभालते आए हैं। जी थैंक यू सो वेरी मच। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने केस की तरफ आते हैं, जिस पर मैं आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ आपसे बात भी करना चाह रही हूँ। सबाहत साहिबा, क्या कहेंगी? एफआईआर आपने देखी, डिटेल्स आपने देखी, केस को आपने स्टडी किया, ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं ये इनिशियल जो एफआईआर आपने मुझसे शेयर की है उसके अंदर तो ये अननोन असेलेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई इनिशियली, और बाद में फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर आप मेरा ख्याल है आई एम श्योर के जैसे आप बता रही हैं कि वो लड़का आइडेंटिफाई हो गया, तो उन्होंने उसको उसके अंदर नॉमिनेट किया होगा कि ये लड़का जिसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, हम ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं जानता, ये सब जानता है। और इन सब के बाद इसने उसी मामू को कत्ल किया है जिसने पाला पोसा और बड़ा किया। माशरे के इस रवैये को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, माशरे में तो हमने ये तो मैं समझती हूँ कि ज़वाल पजीर है हमारा माशरा, वैल्यूज़ जहाँ पे अब नहीं रह गई। अगर कोई एक बात हम कंसिडर करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि हाउ टू मेक मनी, और वी हैव बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक, और शायद इसीलिए जो रिश्ते हैं उनका तकद्दुस ख़त्म होता जा रहा है। कम तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन ख़त्म होता जा रहा है, और ये फिर किसी भी ज़वाल पजीर माशरे की निशानी होती है। जब वहाँ वैल्यूज़ ना रहे, इक़दार ना रहे, रिश्तों का तकद्दुस ना रहे, तो इट इज़ एन इंडिकेशन एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। माशरे में हम जब भी किसी किस्म की कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि माशरा ख़राब हो गया, या माशरे की वजह से ऐसे माहौल जो है वो क्रिएट हो गए, माशरे में ऐसे हालात व वाक़यात हैं जिसकी वजह से इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो पेश आते हैं। माशरा तो आपसे बनता है, माशरा तो मुझसे बनता है, हम सबसे मिलकर बनता है, फिर हम इल्ज़ाम हमेशा माशरे पर क्यों ठहराते हैं? उसकी वजह कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या आपके नॉर्म्स हैं वो ये माशरा ही सेट करता है, और हमारा जो सोसाइटी है जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो आपको पता है कि वो बड़ा इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, और उसमें ज़्यादा जो टच है वो रिलीजन का है, और फिर उसको सिर्फ वो टच नहीं है बल्कि उसको समटाइम्स आपको पता है कि डीफॉर्म करके भी पेश किया जाता है। फिर हम चूँकि पार्टीशन के बाद ये मुस्लिम और हिंदूज़ का पहले कंबाइन रहते थे, शायद मुझे लगता है कि उसका भी एक असर है कि, और उसके बाद फिर हमारी जो माशरती इक़दार है वो तब्दील होती गई उसकी, और वो इकनॉमिक आपकी क्राइसिस की वजह से आपकी इकनॉमिक्स बड़ी इफ़ेक्ट की, आपकी एजुकेशन बड़ी इफ़ेक्ट की, और ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं किसी भी माशरे की तनज़्ज़ुली या तरक्की के लिए कि उसके माशरे में क्या सहूलियात उस सोसाइटी को, उस सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं और किन से उनको डिप्राइव रखा जा रहा है, किस तरह क्लास सिस्टम जो है उसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरह तबकाती निज़ाम लोगों को एक दूसरों से अलहदा कर।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी को, किसी भी माशरे को बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी तनज़्ज़ुली के लिए दिया है। बिल्कुल ठीक है सबात साहिबा, जिस तरह से मामू ने इस बच्चे को पाला बड़ा किया और फिर बदकिस्मती के साथ वो मोमानी जिसने इस बच्चे को पाला भी था, बड़ा भी किया, माँ समझकर इंसान किसी बच्चे को जब अडॉप्ट करता है, उसकी लुक आफ्टर करता है, उसकी ग्रूमिंग करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, उसको खाना खिलाता है, तो ऑब्वियसली वो उसका बड़ा होता है, यानी कि रिश्ते में खातून है तो वो माँ का दर्जा रखती है। उसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इस्तेमाल होना और फिर उसी के कहने पर कि तुम मेरे शौहर को साइड पर लगाओ ताकि इसके जाने के बाद हम आपस में निकाह कर सकें, बदकिस्मती। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा के केसेस में। अडॉप्टेड केसेस के अंदर बच्चे जो होते हैं वो होते तो अडॉप्टेड हैं, लेकिन उनको डिप्राइव रखने के लिए भी किसी क्रिमिनल विरासत से और उसको डिप्राइव रखने के लिए भी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और फिर और वो यूजुअली इसी तरह के मैटर्स होते हैं, चूँकि वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होता तो फिर माओं के साथ यूजुअली ऐसे बनाया जाता है कि इसके इलिसिट रिलेशंस थे और थिंग्स लाइक दैट। सो ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस केस के अंदर उसके जो मामू हैं उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, एसेट्स कितने थे, आया उसने कोई एसेट उस लड़के के नाम पे लगाया था या वो लगाने जाना चाह रहा था, और उसकी बीवी जो है शी डोंट वांट इट। ठीक है, क्या मैसेज देने चाहेंगी माशरे के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाने वाले जालिमों के हवाले से? मैं तो कोई ऐसा मतलब मैं मॉरल सबक तो नहीं दे सकती, क्योंकि हम रोज़ यहाँ पे अपने अदालतों में देखते हैं कि कैसे मॉरलिटी को यानी तबाह किया जा रहा है ऐसे, और इसी सिर्फ एक साइड से नहीं है, इसमें आप सिर्फ माशरे को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। यहाँ जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इंसाफ बांट रहे हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं, और हमने देखा है कि अदालतों ने किस तरह जो लोग जिनके हक बनते थे इंसाफ लेने के, उनको किस तरह इंसाफ नहीं दिया और फिर किस तरह उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और उन्होंने लोगों को फिर ब्रूटली मर्डर किया। सो ये इट्स पार्ट ऑफ दूसरा मिला के माशरा बनता है ना, सिर्फ आप मुलजमान को या मुजरिमों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये आपका इंसाफ का सिस्टम भी है जो कि कमज़ोर है और जिसने लोगों को इतनी जुर्रत दी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, और लोगों को पता है कि अगर वो जुर्म करेंगे भी दे कैन गो स्कॉट फ्री। सो फिर ये आपका वो कमज़ोर निज़ाम इंसाफ भी है जो इस सारे क्राइम रेशो में जो इजाफा है उसका ज़िम्मेदार है। मैं ये पर्सनली आई बिलीव इट। ठीक है, आप एक खातून भी हैं, आप एक पढ़ी लिखी खातून भी हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि माशाल्लाह से जिस कुर्सी को आपने संभाला है इस कुर्सी को अरसे दराज से मर्द संभाल रहे थे। इट मीन्स कि आप हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे माशरे में बढ़ते हुए जराइम की बहुत बड़ी वजह ख़वातीन हैं जो हवा देती हैं मसले मसाइल को, झगड़ों को। हम मुख्तलिफ़ किस्म की जब FIRs को पढ़ते हैं या फिर उसके बाद होने वाली सज़ाओं के हवाले से बात करते हैं, जो मुझसे कहीं बेहतर आप समझती हैं, क्योंकि रोज़ अदालत जाना, वहाँ से आना, केसेस को डील करना, यह आपका मामूल का मामला है। आप क्या समझती हैं, ख़वातीन का बड़ा किरदार है जराइम के बढ़ने में? जी नहीं, बिल्कुल आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, और ये बड़ी बायस स्टेटमेंट है आई थिंक, क्योंकि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हर गलत काम का जो सेहरा है वो ख़वातीन के सर पे लगाया जाता है। और इवन आप ये देखिए कि जो आपकी क्राइम रेशो है उसमें भी इज़्ज़त बेइज्जती का जो यार्ड स्टिक है वो औरत को रखा जाता है, बेटी को या माँ को या बीवी को। सो ये दे आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट द ओपोनेंट्स। इसलिए मैं नहीं समझती कि इसमें कोई सच्चाई है। ये बड़ी सतही सी और बड़ी घटिया सी बात है कि जिसमें आप ये कहें कि औरतें जो हैं वो हर जुर्म के पीछे हैं या हर जुर्म की ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा मैं तो इसका एक तो रीज़न मैंने आपको बताया कि कमज़ोर आपका निज़ाम इंसाफ है, और दूसरा पे लैक ऑफ टॉलरेंस भी है। हमारी माशरे में कुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर लालच और तमा जो है उसने सोसाइटी की फैब्रिक को ऑल टुगेदर बर्बाद करके रखी है। आई थिंक दीज आर द रीजंस। ठीक है, वर्किंग लेडी को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है, ये हम सुनते आ रहे हैं जब हम मैट्रिक के बाद कॉलेज को ज्वाइन किया। आप भी ये बातें सुनती आ रही हैं या आपने नहीं सुनी? जी मैंने सुनी भी है और मैंने फेस भी की है। फेस भी की है। क्या क्या फेस किया और कैसे फेस किया उन ख़वातीन, उन लड़कियों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रही हैं, जिनको चैलेंजेस का सामना है, जिनको ये कहा जाता है कि इस माशरे में तुम नहीं चल सकती, जबकि वो बेचारी अभी इनिशियल स्टेज पर है और पहले ही डरा दिया जाता है? जी वो तो देखिए, ये तो हाँ एक जंग है। जब आप घरों से निकलते हैं, आप भी इस चूँकि बीइंग अ वर्किंग वुमन यू नो वेरी वेल कि जब आप घरों से निकलते हैं आप काम करने के लिए, तो बाहर एक पूरी दुनिया है
جس سے آپ اپنے آپ کو یو ہیو ٹو سیو یور سیلف فرام دیٹ. لیکن اس سے آپ اسی وقت بچا سکتے ہیں جب آپ کی کردار کے اندر یا آپ کی اندر کی انر اسٹرینتھ ہوگی. اگر اف یو آر ناٹ اسٹرانگ فرام ان سائڈ تو یو کی ناٹ مطلب ٹیک 2 steps ایون آؤٹ آف یور ہاؤس. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے اندر کی کمٹمنٹ ہے وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اور یہ آپ کی اسٹرینتھ آف بینگ ہے کہ جو آپ کو چلاتی ہے. اور پھر اس مردوں کے معاشرے میں جہاں پہ آپ مطلب مضبوطی کے ساتھ اور بڑی آپ مورل اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں, اس میں چاہے سیکشول ہیرسمنٹ ہے چاہے کوئی اور ہرڈل ہے, you face everything with boldness and bravery. Thank you so much. Thank you so very much.